آپ کی زبانیں کھلنی چاہیے. روایتی تہوار نہیں منانے کے لیے ہم آئے, مذہبی تہوار منانے کے لیے نہیں آئے. ہم زندہ خدا کے بیٹے کی خوشخبری کو اور اس کی خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے آئے. رکا شنتا کا ربی نموا ستو کوری اما کتا ستو کو ربی نموا تکربی ستو کوری الابا رکا سکھا ربا منتو کو ربی اما کتا ستو کو ربی نموا لشکر ربا بابا کتا ربا دیکی شکی نبی نبی ریشن مورو کو سکو ربی ربا ربا رکا ستو کو ربی نموا بابا لشکر ربی نبی ناتو کو ربو کو سکو ربو ربی ریشن ربا سکھا ربا سکھا ربا بابا منتو کو ربو ینما بابا بابا رکا سکھا ربا 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 ریشن ربا رکا تھا ربا رکا تھا ربا رکا تھا ربا ربی ریشن ربا سکو ربو کو تو ربی ربی ریشن ربا رکا تھا ربا رکا سکھا ربا ربا لشم ربا منتو کو ربو رکی ربی 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 تعریف تعریف ہاللویا گلوری. آئیے چلیں میں زبانیں کھولیے, یسوع مسیح کو جلال دیں. ہولی ہولی ہولی. خداوند ہم شکر گزاری کرتے ہیں, ہم اپنی کمیوں کا اقرار کرتے ہیں, ہم اپنی کمزوریوں کا اقرار کرتے ہیں. اے خداوند تیرا شکر ہو, تو ہمیں دسمبر کے آخر تک لے کر آ گیا ہے. تو نے ہمیں دسمبر کا یہ کرسمس 24 کی نائٹ دیکھنے کا فضل دے دیا. تو نے زندگی کی سانسیں دے دی, تیرا شکر ہو. تو نے ہماری خطاؤں ہمارے گناہوں کو ہم سے درگزر کیا, برداشت کیا, تحمل کیا, موقع دیا, چانس دیا. تیرا شکر ہو. اے باپ میری مدد کر, کلیسیا کی مدد کر, ہماری مدد کر, تاکہ آپ کے لوگ تیری خوشی کو حقیقی اطمینان سے سیلیبریٹ کر سکیں. اے یسوع ناصری, ہمارے گناہ, ہماری کمیاں, ہماری کمزوریاں, ہماری خطائیں معاف کر اور اپنے خون سے ہمیں دھو کر پاک کر دے, تاکہ تیرے بیٹے کا پاک خون ہماری زندگیوں کو پاک کرے, نور بخشے, زور بخشے, زندگی توانائی عطا کر. پاک برے کا لہو ہم یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں. اے باپ یسوع مسیح کے نام سے آج تیرے لوگ تیری برکت کو لے کر جائیں, یسوع مسیح کے نام میں آمین. تشریف رکھیے. کیا ہاللویا, پریز دی لارڈ. خداوند کی تعریف ہو, یسوع ناصری کی تعریف ہو, یسوع ناصری کی جے ہو, یسوع کو جلال ملے. ہاتھوں کو اٹھا کر لہرا کر یسوع کو جلال دیں, ورشپ اور زوردار تالیاں یسوع کے لیے جائیں. ہاللویا. خداوند کو جلال, خداوند کی پرستش. آج کی خوبصورت شام, آج کی خوبصورت رات, یہ رات نجات اور حیات کی رات ہے. یہ بابرکت رات ہے, اس لیے اسے کہتے ہیں پاگام والی رات ہے. پاگام والی رات. آئیے, یقین نہیں کرنا, سونا نہیں, گرجے کے لیے سونا. پاگام والی رات آئیے تو گرجے کے لیے نہیں سونا. خداوند آپ کو برکت دے. اسی حضوری, اسی مسا میں خدا کی خادمہ کو, پاسٹر زوریہ کو دعوت دوں گا. وہ آج کلام کی مرادی کریں گے, ریسٹ دیں گے مجھے. آپ کو زور بتا دیں. خداوند یسوع کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. بڑی خوبصورت ورشپ خداوند کے جلال کے لیے, جس سے سمجھ لیجیے کہ روح تازہ ہو چکی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک نے تازگی کو ریسیو کیا ہے. آئیے اس رات کی مبارکباد, اس خوبصورت پریزنس کی مبارکباد ایک دوسرے کو دیجیے کہ ہمارا خدا
आज भी अपना तख्त छोड़कर अपने लोगों के दरमियान उतरता है, अपने लोगों को बरकत देने के लिए, उनको शादमान करने के लिए, उनके अंदर से फिक्रें, परेशानियां और दुख मिटाने के लिए वो अपने लोगों के दरमियान उतरता है। आइए उस बादशाह के लिए उसको जलाल दीजिएगा, आप जैसे भी जलाल देना चाहे उसको जोरावर तरीके से जलाल दीजिएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ मिलकर निकालिएगा लूका की इंजील उसका पहला बाब, लूका की इंजील उसका पहला बाब 26वीं आयत से 35वीं आयत तक तलावत समाप्त फरमाइए। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, छठे महीने में जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था एक कंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी और उस कंवारी का नाम मरियम था। फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ता ने उससे कहा, है मरियम खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है, और देख तू हामिला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। मरियम ने फरिश्ता से कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती? और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। तशरीफ रखिएगा। मेरे अजीजों, आज का हमारा टॉपिक है मरियम पर फजल, ग्रेस टू मैरी, ग्रेस टू मैरी, मरियम पर फजल। और लफ्ज फजल कलाम मुकद्दस में तकरीबन 125 मर्तबा हमें मिलता है। यूनानी ज़बान में इस लफ्ज का मतलब है फेवर फ्रॉम गॉड, खुदावंद की तरफ से आपको फेवर मिलना, फजल मिलना, आपके लिए आपके फायदे की बात होना, फेवर आपकी चीज, आपके हक में कोई बात हो जाना, फेवर आपको मिल जाना। और खुदावंद की तरफ से जो आपको फेवर मिलती है, मदद मिलती है, इसको फजल कहा जाता है। खुदा का बेशुमार फजल हमारी जिंदगियों पर सदा जारी रहता है। अगर हम देखें तो इस वक्त अगर हम इस जगह पर मौजूद हैं, जिंदा बैठे हैं, सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, तो ये सिर्फ उसी की ग्रेस है, उसी का फजल है। क्या हमारी कोई खाने की ताकत है? हमारी कोई और लियाकत की वजह से खुदावंद ने आज हमें जिंदा जमीन पर और सबसे बढ़कर अपनी बारगाह इलाही में रखा है, अपनी हैकल में लाया है और अपने उस फजल के तख्त के पास हमें लाया हुआ है। ये सिर्फ उसकी ग्रेस है, उसी का फजल है जो हम पर कसरत से जारी रहता है। हम गुनाह करते हैं और करते रहेंगे। हम हमेशा वही करते हैं जो हम करना नहीं चाहते। हम सोचते कुछ है लेकिन हो हमसे कुछ जाता है। और पौलुस रसूल इसीलिए कहता है कि जो मैं जिस चीज का इरादा करता वो तो मुझसे बन नहीं पड़ता, लेकिन जिसका इरादा नहीं करता वो मुझसे हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद यानी गुनाह भी करते हैं और करते भी रहते हैं, और आइंदा भी जिंदगी में हमसे गुनाह होते रहते हैं, लेकिन उसका फजल कभी नहीं रुकता। उसके फजल की रहमत हम पर कभी ठहरती नहीं, रुकती नहीं है, बल्कि कंटिन्यू जारी रहती है। मुसलसल उसका फजल हमें मिलता रहता है, क्योंकि खुदावंद हमारा खुदा इस कदर भला खुदा है, इस कदर मोहब्बत से भरा खुदा है कि तमाम गुनाह, चाहे वो माजी के हैं, हाल के हैं, मुस्तकबिल हैं, सिर्फ एक नाम यीशु नाम पर ईमान लाने के वसीला से वो हमारे तमाम गुनाहों से हमें धोकर पाक करके हम पर फजल को जारी कर देता है, हम पर अपनी ग्रेस को उंडेलना शुरू कर देता है, हम पर अपनी फेवर को जारी फरमा देता है। ये उसी की फेवर है, उसी का ग्रेस है। और मैं ये आज बात सबके सामने वाज़िया एक बात कहना चाहूंगी और अपने लिए बोलूंगी। अगर आपका दिल चाहे तो इस लाइन को रिपीट अपने लिए कीजिएगा कि मैं समझती हूँ कि अगर मैं कुछ कहूँ कि मुझ पर गुनाह से ज्यादा फजल है तो ये बात ठीक है। अगर आप में से किसी पर गुनाह से ज्यादा फजल है तो अपने आप से कहिए कि मुझ पर
गुनाह से ज्यादा उसका ग्रेस है, उसका फजल है, उसका फेवर मेरी जिंदगी पर जारी है। हम जितने गुनाह करते हैं वो कभी हिसाब में नहीं लाता। जब हम उसके बेटे यीशु के खून को अपनी जिंदगियों पर ले लेते हैं तो उसका फजल हमारे लिए कंटिन्यू हो जाता है, उसका फजल हमें धोना शुरू कर देता है, उसका फजल हमें पाक करना शुरू कर देता है और उसका फजल फिर से बाप से हमें मिला देता है। और खुदा की बख्शिश का जो ग्रेस है, वो फजल है, वो जब हम तौबा करते हैं तो हमारे गुनाह मुआफ हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि ना सिर्फ गुनाह मुआफ होते हैं, बड़े बड़े खुदाम जब उनके गुनाह मुआफ हो जाते हैं तो फजल पता कैसे जारी होता है? उसके बाद इसी ऑल्टर से वो दूसरों के गुनाह मुआफ कर रहे होते हैं। ये उसका फजल है, ये उसकी ग्रेस है कि जब उसकी ग्रेस जारी होती है तो खादम भी पहले इंसान ही है और इंसान होते हुए वो गुनाह में जितनी मर्जी जिंदगी गुजारे हो, जितना मर्जी उन्होंने गुनाह किया हो, मर्जी गुनाह ही क्यों ना हो, लेकिन जब धुल जाते हैं, पाक हो जाते हैं उनके गुनाह, तो वो दूसरों के गुनाह तक मुआफ करने के लिए खुदावन के आगे जब रिक्वेस्ट करते हैं तो उनके भी गुनाह मुआफ हो जाते हैं। और ये उसका फजल है, ये उसकी ग्रेस है, ये उसी का फेवर इंसानों के लिए जारी रहता है। और उसकी ग्रेस की बदौलत ही वो हमेशा इंसानों को अपने पास लाकर हर बरकत, हर नेमत और हर तरह की अफसाइश उन्हें अता फरमाना शुरू कर देते हैं। याद रखें कि हमने फजल के लिए कोई कीमत अदा नहीं की, हम फजल के लिए कुछ भी पे नहीं करते। अगर आप ये सोचें कि शायद फजल लेने के लिए हमें कुछ पे करना पड़ेगा, हमें कुछ देना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि बड़े खूबसूरत हालत के एक अल्फाज है, हेडसन जैकोबी ने कहा, फजल खुदा हमारी जिंदगियों में काम कर रहा है, वाकई मुफ्त है, तो हम जानते हैं कि खुदा की तरफ से फजल महंगा है। और वही फरमाते हैं कि सलीब इस बात का सख्त रद्द अमल है कि खुदा का फजल कितना महंगा है, कि जो कुछ खुदा ने मसीह के जरिए किया है वो मेरे गुनाहों को भी मुआफ करने के लिए काफी है। क्योंकि हम में से हर एक गुनाह के अंदर पैदा हुआ है और मेरे और आपके गुनाहों को माफ करने के लिए सिर्फ उसका फजल, उसके बेटे यीशु का कीमती खून काफी है, उसका सलीबी कफारा काफी है और उसी के वसीला से हम पर फजल हुआ है। अब मैंने ये बात कही कि मरियम पर फजल, ग्रेस टू मैरी, मरियम पर फजल नहीं है, मरियम पर फजल हुआ है। क्लैरिफिकेशन आज कर दोबारा से करीम खुदा के खादिम अपने ये सारे सरमन्स में इस बात की क्लैरिफाई कर चुके हैं, इस बात को कि मरियम पुर फजल नहीं बल्कि मरियम पर फजल हुआ है। मरियम पर फजल और पुर फजल दो अलग थी। तो मरियम पर फजल हुआ, जब खुदा का फजल आप पर होता है तो आपका भी तारुफ चेंज हो जाता है, आपका इंट्रोडक्शन चेंज हो जाता है, आपकी लाइफ के टोटल जो आपके हवाले होते हैं वो बिल्कुल बदल कर रह जाते हैं। और मरियम जो कि जिसके बारे में कहा जाता है एक आम सी लड़की, एक आम से शहर में, एक आम से इलाके में, एक आम से मुल्क में पैदा हुई और एक आम सी जिंदगी गुजारकर बड़ी हो रही थी, एक आम सी लड़की। आज चर्च में बहुत सारी ऐसी बेटियां जिनको बनाम कोई भी नहीं जानता, वजह क्योंकि आम सी लड़कियां हैं, आम से वो घरानों से ताल्लुक रख रही है जिनकी कोई नेम फेम नहीं है, जिनकी कोई शोहरत नहीं है, कोई नाम नहीं है और वो आम घरानों के साथ ही पल बढ़ रही है, जवान हो रही है, लड़के हैं तो उनके साथ भी ऐसा ही है। और मरियम भी सेम ऐसी ही थी कि वो एक आम लड़की थी, जिस तरह आम लड़की पैदा हो रही है, जवान हो रही है, सेम ऐसे ही मरियम जो थी वो भी पैदा हुई, बढ़ना शुरू हुई। और उसके बाद लेकिन हुआ क्या कि जब मरियम पर खुदा का फजल हुआ तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन चेंज हो गया, उसका तारुफ बदल गया और उसका जो नया तारुफ आ रहा है उसके माँ बाप की तरफ से नहीं, उसके रिश्तेदारों की तरफ से नहीं, उसकी कोई तालीमी काबिलियत की वजह से नहीं, उसकी किसी डिग्री की वजह से नहीं, बल्कि खुदावंद के उस बड़े फजल की वजह से उसकी सिर्फ उसकी खूबियां चेंज हो गई, उसका तारुफ चेंज हो गया। क्योंकि फजल के साथ ही आपका इंट्रोडक्शन चेंज हो जाता है और गॉड्स फेवर आपका तारुफ टोटली चेंज करके रख देती है, आपका पहचान जो है वो बदल कर रख देती है, आप जो कुछ होते हैं उसको बदल कर रख देती है। सो इसी चर्च में मेरी एक बहन के साथ मुलाकात हुई तो मुझे उन्होंने बताया कि मैं इवेंजलिज्म भी करती हूँ। मुझे इससे पहले उनकी पहचान एक आम लड़की के तौर पर थी, लेकिन जो ही मुझे ये बात पता चली कि ये एक वागो लड़की है और ये खुद भी इस इंजील की बशारत करने वाली है, तो आज शाम जब इस मस्बा से फर्स्ट प्रेयर
करवाई तो मैंने उसी बहन को बनाम बुलाकर तो फिर यहाँ से करवाई। यानी गॉड्स फेवर, यानी आप जब खुदावन के साथ जुड़ जाते हैं, आप जब इस फजल के उस डायलॉग में चलना शुरू कर देते हैं, आपकी पहचान बदलना शुरू हो जाती है, आपका तारुफ चेंज हो जाता है। मेरा तारुफ अगर मैं कहूँ तो बाहसियत एक प्रोफेशनल टीचर के तौर पर था। ऊपर भी एक टीचर बैठे हुए हैं, लेकिन टीचर को कौन जानेगा? एक एरिया जानेगा, या एक स्कूल या जिस एकेडमी में आप पढ़ा रहे हैं वहां तक, एक नर्स है तो वहां तक। लेकिन जो ही आप खुदावन के साथ जुड़ जाएंगे, उसका फेवर आपके लिए जारी होगा, और उस फेवर की बदौलत न सिर्फ उस इलाके में बल्कि दूर दूर तक आपकी शोहरत फैलना शुरू होगी, और आप फिर उसी फजल के तहत एक खादम और खादमा के तौर पर पहचाने जाना शुरू होंगे। आपकी पहचान ही टोटली चेंज हो जाएगी, आपका तारुफ चेंज होना शुरू हो जाएगा, आपका नाम चेंज हो जाएगा। और नाम सिर्फ आपकी डिग्री के साथ नहीं, आपके बाप के साथ नहीं जुड़ेगा, आपकी माँ के साथ नहीं जुड़ेगा, आपके बहन भाइयों के साथ नहीं, बल्कि उसकी जात के साथ जुड़कर तो आपका पहचान आपको बदलना शुरू कर देगा। और जिन पर खुदा का फजल ठहरता है वो फिर मकबूल ठहरते हैं, फेवरेट बनना शुरू हो जाते हैं। और आपके नज़र आप खुद देखिएगा कि एक आम शख्स की और एक खादम की क्या वैल्यू है। यानी जो खुदावंद की ग्रेस के नीचे आ जाते हैं लोग, उनकी वैल्यू फिर आपकी निगाह में और खुदावंद की निगाह में भी कैसे बढ़ना शुरू हो जाती है। फजल आपको शोहरत अता फरमाता है। आज दुनिया शोहरत के पीछे भाग रही है। मैं मशहूर हो जाऊं, चाहे ड्रेसिंग करके, चाहे ब्यूटी के थ्रू, चाहे कोई और चीज अपना कर, लेकिन शोहरत पाना चाह रही है, नाम हासिल करना चाह रही है, इज्जत पाना चाह रही है। लेकिन इज्जत, शोहरत, ये सब याकूब का खुदा बढ़ाता है। इज्जत तेरी बतावेगा, और जब उसका ग्रेस जारी होता है तो आपका नेम फेम जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। आपकी नेम फेम जो है वो दुनिया में काम करना शुरू हो जाती है। दुनिया के लोग कंपटीशन करते हैं, मुकाबलों में हिस्सा ले रहे हैं, दौड़ में हिस्सा ले रहे हैं, और दौड़ लगी हुई है। कोई मिस यूनिवर्स बनना चाह रहा है, कोई मिस पाकिस्तान बनना चाह रहा है, कोई कुछ बनना चाह रहा है, कोई कुछ बनना चाह रहा है, लेकिन वो उनकी उन बातों की वजह से शोहरत पा रहे हैं। लेकिन खुदावंद की ग्रेस जिस पर आएगी, उसके टैलेंट की वजह से नहीं, किसी और बात की वजह से नहीं, बल्कि खुदावंद के उस ग्रेस की वजह से उसकी शोहरत जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। और यही काम मरियम के साथ हुआ कि मरियम को उसकी पहचान बदलकर एक नाम मदर मैरी दे दिया गया। और मदर मैरी, मुकद्दसा मरियम, एक आम लड़की मरियम से मुकद्दसा मरियम वो बन जाती है। क्यों? उस पर गॉड्स फेवर जारी हो जाती है, उस पर गॉड्स ग्रेस जारी हो जाती है, और उस गॉड्स ग्रेस की वजह से वो मरियम से मुकद्दसा मरियम और मदर मैरी। अगर आप देखिए तो यहाँ पर आपको लास्ट पे पीछे मिलेगा, एक पेज के ऊपर लिखा हुआ है मैरी क्रिसमस। और मैरी क्रिसमस यानी खुशी के साथ हम क्रिसमस भी कहते हैं, और मदर मैरी के नाम के साथ ही इसका नाम जोड़ दिया गया मैरी क्रिसमस। और अगर कहा जाए कि मेन कैरेक्टर क्रिसमस का खुदावंद यीशु मसीह है, तो उसके बाद जो कैरेक्टर आता है वो मुकद्दसा मरियम है, उसके बाद यूसुफ, और बाकी सारे बाद में कैरेक्टर। यानी जितने इस सारे के सारे खुदावंद यीशु मसीह को रिसीव करने, उसको कबूल करने, उसको काम करने, उसके उस नाम को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए गए लोग, उनमें सबसे पहला नाम मदर मैरी का, और उसके बाद यूसुफ, और यूसुफ के बाद आ जाता है बाकी किरदार। और ये सारे का सारा सिलसिला फजल की वजह से, फजल के साथ ही सारा के सारी उसकी पहचान जो है वो बदलना शुरू हो गई। एक आम चरवाहा दाऊद, एक आम, बिल्कुल आम भेड़ बकरियां चरा रहे हैं, और भेड़ बकरियां चराते हुए फजल उस पर ठहरता है, और जब फजल उस पर ठहर जाता है तो एक आम चरवाहे से वो बादशाह बन जाता है, नबी बन जाता है। ये गॉड्स ग्रेस है। समसून एक आम ही शख्स, लेकिन खुदावंद का ममसूह। इसके बाद अगर देखा जाए तो अब्राहम से अब्राहम, कौमों का बाप, सारी से सारा, कौमों की मां बन गई। साउल से पालूस बन गया। साउल जिसको कहा जाता है टेररिस्ट था, कलीसिया का मारने वाला, लेकिन कलीसिया को तबाह बर्बाद करने वाले पर जब खुदा का नूर चमका, ग्रेस उस पर ठहर गई, तो वही कलीसिया को फिर बचाने वाला और इंजील की बशारत करने वाला बन गया। शमौन से पतरस, एक आम शख्स जो मछलियां पकड़ रहा, मछेरा है, और मछलियां पकड़ने वाले की क्या वैल्यू हो सकती है, और वो मछलियां पकड़ने वाला मछेरा जो है उसके
बाद खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द बन गया। और जदाऊद के बारे में कहा जाता है आम लड़का जो मैदे कोलों में गेहूं झाड़ रहा था कि उसको मिद्यानियों से छिपा रखे, और खुदावंद का फरिश्ता उसे दिखाई देकर कहने लगा ऐ जबरदस्त सूरमा। गॉड्स ग्रेस जब ठहरती है तो कोई आम शख्सियत ही क्यों ना हो, उसे खुदावंद खास बना देता है। ये गॉड्स ग्रेस है कि ऐ जबरदस्त सूरमा उसके बाद उसकी पहचान बना दी। और अगर देखा जाए तो आज मेरी और आपकी पहचान खुदावंद के ग्रेस की वजह से है। अगर जहां पर आप बाय प्रोफेशन क्यों नहीं जॉब कर रहे, और अगर आपको लोग जान रहे हैं, अगर आपकी पहचान वहां पर बन चुकी है, तो वो भी गॉड्स ग्रेस है। वो भी खुदावंद के फजल की बदौलत है कि आज आपका नाम जो है वो मसीहियत के साथ जुड़कर, और बाय नेम आपका नाम जो भी हो, चाहे ज़बीहा मसीह लिखा जाएगा, कोई भी नाम है, पौलुस मसीह, और मसीह के साथ जब जुड़ गया तो मसीह की पहचान आपको मिल गई, और गॉड्स ग्रेस आपके लिए जारी हो गया। आपके लिए उसकी फेवर जो है उसके बाद जारी होगी। मरियम ने फजल को कबूल किया। सबसे पहले मरियम का तारुफ बदल गया और मरियम ने फजल को कबूल किया, फजल को कंसीव कर लिया, फजल को अपने अंदर कंसीव कर लिया। इस लम्हे जब इसने फरिश्ते का इस्तकबाल किया, खुदा की तरफ से बनाए गए मंसूबे को उसने रिसीव करने के लिए हाँ कर दी, रजामंद हो गई। जब फरिश्ते ने कहा कि तू हामिला होगी, तो उसने इस बात को रिसीव कर लिया, और रिसीव करने के बाद उसने कंसीव किया, कबूल कर लिया। मोस्टली आप जो पढ़ी लिखी माएँ हैं, वो जब अपनी रिपोर्ट देखती है ना, डॉक्टर्स के पास जाए तो वो सुनती है कि आप, और डॉक्टर्स पता क्या कहेंगी, आप कंसीव कर चुके हैं, मुबारक हो। मुकद्दसा मरियम ने भी उस फजल को कंसीव कर लिया था, उस फजल को अपनी जिंदगी में ले लिया था, उस फजल को अपने रहम में कबूल कर लिया था। और एक राइटर बड़ी खूबसूरत बात कहता है कि एक वाहिद सालिस यीशु की माँ के तौर पर वो फजल के मुसन्निफ और फजल को तकसीम करने वाली माँ बनी। यानी एक तो फजल हुआ, और उस फजल को, उस ग्रेस को फिर डिवाइड करने वाली, उस फजल को ना सिर्फ अपने तक बल्कि दूसरों तक बांटने वाली वो माँ बन गई। और अगर मरियम पर फजल हुआ तो फजल का साइन क्या मिला? उसने फजल को कबूल कर लिया, लेकिन फजल का साइन उसने कंसीव किया और यीशु मसीह को अपने अंदर लाया, यीशु मसीह को अपने यूट्रस में कबूल कर लिया। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि शरीयत तो मूसा की मार्फत मिली, लेकिन फजल खुदावंद यीशु मसीह की मार्फत पहुंचा। और बड़ी खूबसूरत बात कि फर्स्ट बिलीव एंड सेकंड रिसीव। जब आप पहली दफा कबूल कर लेते हैं तो फिर आप उसके बाद रिसीव कर लेते हैं। पहली दफा यकीन करते हैं और दूसरी बार कबूल कर लेते हैं, उसको अपने अंदर लेकर आना शुरू कर देते हैं। और फजल यीशु मसीह है। अगर हम किसी और तरफ देखें तो गलत होगा। और आज सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की वो ग्रेस है जो जिंदगियों पर जारी रहती है। उसने फजल को रिसीव किया, कंसीव किया। और एक बड़ी खूबसूरत बात, लूका की इंजील पहला बाब और 28वीं आयत, और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे। फजल जब हुआ तो खुदावंद भी उसके, जब फजल होता है तो खुदावंद आपके साथ होता है। जब फजल आप पर ठहर जाता है, जब ग्रेस आप पर आ जाती है, तो खुदावंद आपके साथ होता है। और फरिश्ते के सलाम में मरियम का नाम इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि फजल की वजह से अब मरियम के बजाय उसको सलाम भेज दिया गया। आसमानों से उसके लिए सलाम आया, आसमानों से उसके लिए उसका तारुफ चेंज हो गया, आसमानों से उसके लिए ग्रेस जारी हो गई, फेवर जारी हो गई। और मुतबादल नाम के तौर पर फरिश्ता ने उसे इस्तेमाल कर लिया। इस कदर फजल कि ये लक़ब उसकी शनाख्त बन गया। और मरियम के लिए कहा गया कि मरियम पर फजल हुआ है, वो औरतों में मुबारक है और उसके रहम का फल मुबारक है। ये उस पर ग्रेस का सारा था कमाल, और उसकी ग्रेस की वजह से ही खुदावंद ने उसको मुबारक ठहरा दिया। सेंट इफ्राइम बयान करते हैं कि दो औरतें हव्वा और मरियम बिल्कुल बराबर पैदा की गई, यानी दोनों को मिट्टी ही से पैदा किया गया, लेकिन एक हमारी मौत का सबब बन गई और दूसरी हमारी जिंदगी को लाने का सबब बन गई। ग्रेस ने दोनों को चेंज करके रख दिया, दोनों की डेजिग्नेशन
के रख दी। हम आज हवा को किस नाम से जानते हैं और मरियम को किस नाम से पहचान रहे हैं। यानी ग्रेस ने दोनों की डेजिग्नेशन ही चेंज करके रख दी। लेकिन बाद में अगर देखा जाए तो खुदावंद यीशु मसीह जब कंसीव मकदसा मरियम ने उसको कर लिया, उसने फजल को अपने अंदर ले लिया, और फजल को जब हम कबूल कर लेते तो फजल से हमारी निजात होती है। नीचे अगर देखें तो 47 वर्ष में 46, मेरी जान खुदावन की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई। मुनज्जी खुदा यानी जब फजल आया, फजल को कंसीव कर लिया तो नजात को रिसीव कर लिया, नजात आ गई उसकी जिंदगी में। और जब आप फजल को रिसीव कर लेते हैं, कंसीव कर लेते हैं, तो आपकी जिंदगी में नजात आना शुरू हो जाती है, आपकी जिंदगी में नजात काम करना शुरू कर देती है। इसलिए आज बड़ा जरूरी है कि खुदावन की उस आवाज को सुना जाए, कलाम को सुना जाए, कलाम को सुनकर कलाम को कबूल किया जाए, क्योंकि कलाम को कबूल करने, कबूलियत के अंदर ही हमारी बरकत होती है। और जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फरजंद बनने का हक बख्शा। और आज भी जितने लोग खुदावन यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, उन्हें वो अपने फरजंद बनने का हक बख्शता है। उन पर खुदावन की ग्रेस जो है वो ठहरना शुरू होती है, और इस फजल ही की वजह से बरकत जो है वो जिंदगियों में काम करना शुरू करती है, और हमारी तमाम बरकत का दारोमदार कबूलियत पर है। कलाम मुकद्दस में अगर आपने पढ़ा हो तो लिखा हुआ है कि जो नबी के नाम से नबी को कबूल करता है, यानी जिस नाम से आप जिसको कबूल कर लेते हैं, वो ग्रेस आप पर ठहरना शुरू हो जाती है, वो फजल आपकी जिंदगियों में काम करना शुरू हो जाता है। और हमारे फजल का दारोमदार, हमारी बरकत का दारोमदार फजल को कबूल करने पर है। जिस तरीके से आप अपनी ग्रेस, खुदावन की जो ग्रेस है, उसको कबूल करना शुरू करते हैं, उसी तरीके से आपकी बरकतें एक्टिवेट आपकी जिंदगी में हो जाती हैं। और वो कबूलियत खादम की है, कलाम की है, खुदा की हो, फजल, शिफा, जिंदगी, बरकत, ये सब के सब चीजें फजल ही की बदौलत है, उसकी कबूलियत की बदौलत है। जिस तरह लिशबा के घर में मरियम जाती है, तो मरियम पर चूंकि खुदा का फजल था, फजल किस पर था? फजल किस पर था? मरियम पर। और मरियम पर जब उस फजल था, तो उस फजल की बदौलत जब उसने सलाम किया, तो लिशबा के अल्फाज थे कि बच्चा मारे खुशी के मेरे रहम में, और वो दोनों रूहुल कुद्स से भर के। मरियम के सलाम में कुदरत नहीं, बल्कि उस ग्रेस में कुदरत थी जो मरियम पर ठहर चुका था, उस फजल में कुदरत थी जो मरियम के अंदर उतर चुका था, जो वो कंसीव कर चुकी थी, जो वो रिसीव कर चुकी थी। उस रिसीविंग के बदौलत, उस कंसीविंग के बदौलत, उस फजल के तहत दोनों जाने सलाम की बदौलत रूहुल कुद्स से भर जाती हैं। जब आप पर भी फजल होता है, तो जो बरकत आपके अंदर होती है, जब दूसरे आपसे मिलते हैं तो उसी बरकत के अंदर वो मूव करना शुरू कर देते हैं। और ये फजल के कमाल है, ये फजल ही की कुदरत है कि उसकी बदौलत अलिशबा और यूहन्ना दोनों के दोनों उस रूहुल कुद्स की कुदरत से भर के और फजल को कबूल कर लिया। और देखा जाए तो अलिशबा ने भी आगे से यही काम किया। जब सलाम किया गया तो सलाम को कबूल कर लिया, उस सलाम को उसने रिसीव करके कबूल कर लिया। तो खुदावन का फजल अलिशबा और यूहन्ना दोनों पर, जो कि पेट में था, दोनों पर ठहर गया। दोनों जो है वो फजल से भर गए। और याकूब पर भी खुदा का फजल ठहरा। अगर देखें तो याकूब पर भी खुदावन का फजल था कि जब वो अपने मामू लाबन के घर में गया तो उसकी बरकतें मल्टीप्लाई होना शुरू हो गई। हम माली तौर पर भी ब्लेस होना शुरू हो जाते हैं जब पर हम पर फजल होता है। जब हम पर खुदावन का ग्रेस ठहरता है तो हम माली तौर पर भी खुशहाली पाना शुरू कर देते हैं। और उसी की वजह से उसका मामू लाबन भी जो है खुशहाल होना शुरू हो गया। और जब फजल को कबूल कर लेंगे तो लोग नीचे जा रहे होंगे, लेकिन आप बुलंदियों की तरफ जा रहे होंगे। आप फजल की वजह से उस सब बुलंद खुदावन की वजह तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे और बुलंदियों पर जाना शुरू हो जाएंगे। और जब आप फजल को कबूल कर लेंगे तो चाहे कोरोना वायरस ही क्यों ना हो, चाहे मोहल्लक बीमारियां ही क्यों ना हो, आपको छूने भी नहीं पाएंगे। जानते हैं कोरोना वायरस के दिनों में आप रेशो निकाल कर देख लीजिएगा कि मसीहियों की डेथ्स बहुत कम थी। और ये अल्फाज से लोगों के मुंह में से निकल रहे कि ये सिर्फ उसका फजल है कि हम कोरोना वायरस से महफूज रहे। उन्हीं दिनों में मेरा छोटा बेटा पैदा हुआ था, सारे डरते थे कि कोई जर्म्स लगेंगे, कोई छू लेगा, यानी वो 1.25 माह का भी नहीं था। तो उसके बावजूद मैं उसको चर्च में लेकर आ गई थी और चर्च में हर बंदा उसको उठा रहा था। कोरोना वायरस के डेज में भी अगर कोई महफूज रख सकता है तो वो उसका
बचाए रखती है, उसकी ग्रेस है आपको हर तरह के हादसात से बचाती है। हादसों से जब आप बचते हैं तो पता क्या कहते हैं कि बोले फजल की बदौलत ऐसी बच गई है, वरना साढ़े को काम तो है नहीं समझिए, ऐसे कहते हैं ना। यानी हम उसके फजल ही की बदौलत बचे हुए हैं। और अब तक हादसात से, बीमारियों से, मुश्किलात से, परेशानियों से अगर बचे चले आ रहे हैं तो ये सिर्फ उसकी ग्रेस है, उसी का फजल है, उसी का रहम है। और फजल एक और मतलब कि काबिलियत के बगैर हमें तरक्की दिलाता है। प्रोटोकॉल मुअत्तल कर देते हैं। आज किसी ने बाहर भी जाना हो ना तो प्रोटोकॉल मांगता है, किसी ऑफिस में जाना हो, कोई काम करवाना हो, प्रोटोकॉल। जिन पर खुदावंद की ग्रेस है वो बगैर प्रोटोकॉल के तरक्की करना शुरू होते हैं, बगैर प्रोटोकॉल के, बगैर किसी रिश्वत के, बगैर कोई और काम करवाए वो हमेशा तरक्की की मनाजिल पर तय करना शुरू कर देते हैं। और उसकी ग्रेस काम कर रही होती है। चेक कीजिए कि आज आपकी लाइफ के किस किस एरिया में ग्रेस काम नहीं कर रही, खुदावंद का फेवर काम नहीं कर रहा है, खुदावंद का फजल नहीं ठहरा हुआ, वहां पर खुदावंद के फजल को मांगना शुरू कीजिए, फजल को कबूल कीजिए। और जब आप कबूल करते जाएंगे तो जैसे यूसुफ जो था वो जेल में था और जेल से वो वजीर आज़म बन गया, ये फजल था। और फजल की से आज आपकी तरक्की की मनाजिल तय करना शुरू कर देते हैं। और जब आप पर फजल होगा तो फेवर आप पर होगी। फजल जैसे मैंने कहा कि फेवर है, तो फेवर से फिर दुनिया जो है वो आपको फेवरेट अपना बनाना शुरू कर देगी। मोस्टली सेलिब्रिटीज जो है वो बहुत फेवरेट है। आज और कल हम दोनों मियां में भी एक क्लिप देख रहे थे बलजिंदर सिंह का, इंडिया के मशहूर इस टाइम वो प्रॉफिट है, उनका हम लोग देख रहे थे। उन्होंने अपनी इबादत के अंदर गैदरिंग इकट्ठी करने के लिए जितने इंडियन सेलिब्रिटीज हैं ना उनको बुला रहे हैं। रमेश पुरी, पता नहीं कौन कौन से एक्टर हैं, वो सारे वो बुला रहे हैं। मुझे नहीं पता, वो मतलब मेरे वो पुराने जितने एक्टर थे ना उन सबको बुला रहे हैं अपनी उस इबादत के अंदर। आज लोग फेवरेट बनाना चाह रहे हैं खुद को भी, और फेवरेट्स को बुलाकर गैदरिंग इकट्ठी करना चाह रहे हैं। खुदावंद की फेवरेट बन जाइए, खुदावंद के फेवर को लेकर उसके फेवरेट बन जाइए, तो खुदावंद खुद आपके गिर्द लोगों को जमा करना शुरू, मजमा जो है वो लगाना उसके बाद शुरू कर देगा। आपको कोई और सेलिब्रिटी नहीं बुलानी पड़ेगी। और जब आप फजल को कबूल करके जिंदगी में रिसीव कर लेंगे तो आपका स्टेटस बढ़ना शुरू हो जाएगा। आज लोग स्टेटस के पीछे भी बड़े भागते हैं। हमारा स्टेटस बहुत है, हमारा स्टेटस अलग है, ये आजकल बहुत सुनने को मिलता है। भाई अगर आप स्टेटस लेना चाहते हैं तो गॉड्स फेवर ले लीजिए, गॉड्स फेवर को ले लीजिए, उसके फजल को रिसीव कर लीजिए, आपका स्टेटस बढ़ना शुरू हो जाएगा। और डिवाइन ग्रेस की वजह से जिंदगी में फिर बहार देखेंगे, नाकामियां खत्म, उजाड़पन खत्म, दुख खत्म, और हर तरह की गुर्बत के बंधन, मुसीबत के बंधनों को खुदावंद की ग्रेस तोड़ना शुरू करेगी, खुदावंद का फजल तोड़ना शुरू कर देगा। मरियम ने फजल को जन्म दिया, मैरी प्रोड्यूस्ड ग्रेस। मैरी ने फजल को फिर जन्म दे दिया, प्रोड्यूस कर दिया। अब फजल मरियम के अंदर रहा, इसने लेकिन उसके बाद क्या किया, फजल को प्रोड्यूस किया, जन्म दिया है। इसने फजल को अंदर नहीं रहने दिया, बल्कि क्या किया, फजल को जन्म देकर लोगों को दिखाना शुरू कीजिए। आज आप पर अगर फजल होगा तो आप अपने अंदर से प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे फजल को। सोचे कैसे, आप अपने अच्छे कामों से मुआफ करके, खैरात करके, नेकी करके आप अपने खुदावंद को जलाल देना शुरू करेंगे, खुदावंद का फजल अपने अंदर से दिखाना शुरू करेंगे। जिस प्रोफेशन में जॉब कर रहे हैं वहां पर ईमानदारी से काम करके, ईमानदारी के साथ काम जब आप करते हैं तो जानते हैं लोग क्या कहते हैं, ये जरूर मसीही है, और ये खुदावंद का ग्रेस अपने अंदर से आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। आप अपनी ड्यूटी जो है ईमानदारी से करते हैं, आप अपनी ड्यूटी के दौरान चोरी नहीं करते, चाहे वो वक्त की चोरी है, रुपए पैसे की चोरी है, या किसी भी और काम की चोरी, अगर आप वो नहीं करते तो आप अपने अंदर से फजल को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। मुकद्दसा मरियम ने भी अंदर जब रिसीव कर लिया तो उसने रिसीव करने के बाद, कंसीव करने के बाद उसको अंदर नहीं रहने दिया,
लोगों को फिर उसके बाद जन्म देकर दिखाना भी शुरू किया। गॉड्स फेवर जब जारी होती है तो उसे नजर आना चाहिए, उसे आपको लोगों को दिखाना चाहिए, अपने चाल चलन से, अपने किरदार से, अपनी बातों से आपको लोगों को फिर दिखाना पड़ेगा। अगर देखा जाए तो खुदावंद यीशु मसीह पर भी ग्रेस था, फेवर थी खुदावंद की, खुदावंद यीशु मसीह पर भी गॉड्स फेवर थी और जबरदस्त किस्म की फेवर थी। और वो अपने चाल चलन किरदार से लोगों को बताता था कि मैं ही खुदावंद हूँ, मैं ही खुदावंद का परताव हूँ, मैं ही खुदावंद का नक्श हूँ। और कैसे उसने कहा कि यीशु मसीह ने फरमाया कि बाप मुझ में है और मैं बाप में। तो यीशु मसीह ने बाप की सिफात अपने अंदर से दिखाई, सलीब पर भी लटका हुआ है और क्या कहते हैं, मैं बाप इनको, और ये बाप की सिफत है। कौन सलीब पर लटके हुए, कीलों से झड़ा हुआ, कौन इतने ज्यादा कोड़े खाकर कह सकते हैं कि बाप इनको माफ कर। आज तो लोग छोटी सी गलती माफ नहीं करना चाहते और वो इतने बड़े काम के बाद भी क्या कह रहे हैं, बाप इनको, और ये बाप की सिफात वो दिखा रहे हैं। बेटा अपने अंदर से बाप की सिफात दिखा रहे हैं। मरियम ने जन्म देकर बाप की सिफात दिखा दी, उस ग्रेस को जाहिर करना शुरू कर दिया कि हाँ मैं पाक दामन हूँ। और जानते हैं हदीस एक है कि मुकद्दसा मरियम के बारे में कुरान शरीफ में एक हदीस है, कहा यह जाता है कि मुकद्दसा मरियम जब अपना दामन निचोड़ती हैं तो फरिश्ते वजू करते हैं। ये उसकी पाकीज़गी की गैर अक़वाम भी दावत जो है ना दावे करते हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपने अंदर से ग्रेस को दिखाया, फजल को प्रोड्यूस किया था। उसने फजल को प्रोड्यूस करके लोगों को बताया था कि हाँ मैं पाक दामन हूँ, मैं पाक औरत हूँ। और ये तमाम जितनी कौमें हैं वो सब के सब उसकी सिफात, उसकी इस पाकीज़गी का दावा करती हैं। और आज जब आप शफीक होते हैं, आप रहमदिल होते हैं, आप दूसरों के साथ भलाई करते हैं, आप रहम करते हैं, आप यतीमों का, गरीबों का ख्याल रखते हैं, आप अपने हमसायों के हकूक पूरे करते हैं, तो आप उस फजल को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, उस फजल को दिखा रहे होते हैं, जन्म देकर लोगों के सामने ला रहे होते हैं। हम खुदा से जब रिफाकत रखते हैं, दुआ को बन जाते हैं, तो ये भी दुआ को बनने के साथ खुदावंद के साथ ताल्लुक मजबूत बना लेते हैं, फजल को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। और ये फजल फिर उसके बाद सारे कामों का जब हम जन्म देकर लोगों को दिखा रहे होते हैं तो ये प्रोड्यूस करने का साइन होता है कि हाँ हम पर गॉड्स फेवर है, हम पर खुदावंद का फजल अब तक मौजूद है, हम पर खुदावंद की फेवर अब तक जारी हो चुकी है। नंबर 4 पॉइंट है, फजल से दुश्मन घबरा जाते हैं। फजल से दुश्मन घबरा जाते हैं। जब आप पर फजल जारी हो जाता है, जब आप पर खुदावंद की फेवर जारी हो जाती है, तो आपके दुश्मन भी जो है वो घबराना शुरू कर देते हैं। और घबराने के लिए जो यूनानी लफ्ज इस्तेमाल किया गया वो है फोबोस, जिसका मतलब है स्केयर, फोबिया, फियरफुलनेस, बहुत ज्यादा परेशान। इंग्लिश वर्जन में घबराने के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है डिस्टर्ब, टेरिफाइड। और हेरोदिस के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, मत्ती की इंजील 2 बाब और 3 आयत। इस वर्ष को मेरे साथ जरूर निकालिएगा, मत्ती की इंजील 2 बाब और उसकी 3 आयत। मत्ती की इंजील 2। ये सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए। हेरोदिस और उसके सब लोग घबरा गए। ये वाहिद फिरका था जो तब खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश पर घबरा गया, क्योंकि वो खुदावंद यीशु मसीह का क्या था, दुश्मन था। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का दुश्मन सिर्फ वही घबराया, बाकी सबके अंदर खुदावंद का फजल था और वो शादिमान थे, वो खुशी मना रहे थे। और सिर्फ यही एक ऐसा फिरका था जो परेशान हो गया। और आज भी जब खुदावंद की फेवर आपके साथ होती है, उसका ग्रेस आप पर ठहर चुका होता है, तो आपके दुश्मन घबराना शुरू कर देते हैं। वो चाहे इब्लीस दुश्मन है, चाहे इंसानों की शक्ल में आपके खिलाफ कोई हो चुका है, तो उसको फिक्र पड़ जाती है। खुदावंद यीशु मसीह भी जब जमीन पर थे, तो चूंकि ग्रेस पर उन पर ठहरा हुआ था, तो फकीर फरीसी उनसे डरते थे, खौफजदा रहते थे, और हमेशा खौफजदा रहकर तो उनसे घबरा कर परेशान रहा करते थे। और लाजर को जब जिंदा किया तो वहां पर साफ लिखा कि लाजर को भी मार डाला, यीशु को भी, ताकि लोग इसके पैरों ना हो जाए, लोग इसकी पैरवी ना करना शुरू कर दे। पौलुस से भी, पौलुस के बारे में कहा जाता है कि पौलुस रसूल से लोग क्यों परेशान थे। बदरूहें कहती थी हम पौलुस को भी जानती हैं और यीशु मसीह को भी। जब आप पर खुदावंद का फजल होगा तो लोग आपको भी जानेंगे और बदरूहें
पर खुदावन का फजल मौजूद है। लेकिन अगर ये बात कहूं कि आज कुछ अलग मैटर है, तब क्या था कि बदरूहें भी कांपती थी, फकीर फरीसी भी डरते थे, हेरोदियस और उसके सब लोग परेशान थे, घबरा गए थे। लेकिन आज कलीसिया परेशान है। आज उलट हिसाब हो चुका कि आज कलीसिया परेशान है, आज कलीसिया डरी हुई है, आज कलीसिया घबराई हुई है, बिलों से घबराई हुई है, रुपए पैसे से घबराई हुई है, टेंशनें इतनी ले चुकी है कि बीपी हाई है। इन दिनों में भी बच्चों की शॉपिंग की वजह से परेशान है, बच्चों की और जरूरियात की वजह से घबरा चुकी है। लेकिन जो इस पूरे पैसेज के अंदर जो सबसे ज्यादा लफ्ज इस्तेमाल किया गया, डरो मत, खौफ ना करो। मरियम को जब पैगाम पहुंचता है तो वहां पर भी लिखा खौफ ना कर। अगर चरवाहों को पहुंचता है तो वहां पर लिखा खौफ ना करो, डरो मत। यूसुफ के पास पैगाम पहुंच रहा है, वहां पर भी लिखा गया कि डरो मत, खौफ ज़्यादा ना हो। ज़करिया को पैगाम पहुंच रहा है, वहां पर भी लिखा है डरो मत और खौफ ना कर। 366 मरतबा कलाम मुकद्दस में लिखा गया। अगर साल के दिन 366 है, लीप ईयर का मैं बता रही हूँ, नॉर्मल तो 365 लेकिन लीप ईयर के 366, तो जब 366 दिन भी है, 366 दिनों के लिए खुदावंद का कलाम हमें सिखा रहे डरो मत, खौफ ना करो, खौफसदा मत हो। लेकिन आज कलीसिया खौफ के नीचे है, आज कलीसिया खौफसदा हो चुकी है, न्यूज चैनल्स के थ्रू खौफसदा है, दूसरों की बातें सुन सुन के खौफसदा हो रही है, कर्जों से खौफसदा है, बीमारियों से। लेकिन क्रिसमस का सीजन खौफ को खत्म करने का सीजन है। क्रिसमस का सीजन बीमारियों को, गुर्बत को, ये सब को खत्म करने वाला सीजन है। और बड़ा पंजाबी में हम मुहावरा बोलते हैं कि मेरी जुत्ती नू परवाह। आज सब बड़ी दलेरी से कहिएगा, पंजाबी में कम बोलती हूँ लेकिन ये लफ्ज आप अपने बीमारियों से कहिए, मेरी जुत्ती नू परवाह। बीमारियां जैसी जिन्हें मर्जी मेरे बदन से काम करो, मेरे कर्ज जिन्हें मर्जी कर्जे ने, मेरी जुत्ती नू परवाह है। क्यों? मेरा यीशु आसमान तो इन सारे कमालों में डालने, मेरी बीमारियां दूर करने, मेरे कर्जे दूर करने, मेरी परेशानियां उठाने आ चुके हैं, तो जिंदा है। इसलिए मुझे किसी चीज की परवाह नहीं। सारे के सारे काम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि मेरा खुदावंद यीशु जो है वो खौफ को खत्म कर चुका है। वो कहता है खौफसदा मत हो। महंगाई से, न्यूज चैनल से, किसी भी बात से आपको खौफसदा होने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो ग्रेस के नीचे रहते हैं उनके लिए लिखा जाता है कि वो हंस हंस कर जामे शहादत पीते हैं। चाहे आग की भट्टियों में क्यों ना डाल दिया जाए, उन्हें किसी चीज की खैबत नहीं होती। शेरों की मान में क्यों ना फेंक दिया जाए, वहां पर भी वो हमद कर रहे होते हैं। और पौलुस रसूल बड़ी खूबसूरत बात कहता है कि हमें मसीह की मोहब्बत से कौन जुदा करेगा। कैद में भी खत लिख रहा है, खुदावंद में खुश रहो, फिर कहता खुश रहो। हाथ को ठुके हुए हैं काट पे, बैत लगे हुए, कोड़े मरे हुए, जख्मों में से खून रिस रहा है, लेकिन कहता है खुदावंद में खुश रहो, फिर कहता खुश रहो। और कौन कह सकता है जिस पर खुदावंद का फजल होगा। आप बीमारियों में, परेशानियों में, दुखों में, तकलीफों में, वही शख्स कहेगा जिस पर खुदावंद का फजल होगा, जिसके अंदर क्रिसमस होगा, जो क्रिसमस को कबूल कर चुका होगा, जो यीशु को जन्म दे चुका होगा, वही ये बात करेगा। और वही क्रिसमस भी सेलिब्रेट सही मायनों में कर सकेगा। उसके अलावा कोई शख्स अगर कहे तो वो क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं कर सकता। और खुदावंद यीशु की क्या खूबसूरत बात, क्या खुदावंद यीशु की दहशत, इस कदर दहशत कि जिंदा भी था तो दहशत, तो मर गया तो तब भी दुश्मनों पर दहशत। उसकी कब्र पर भी पहले बिठा दिए, उसकी लाश पर भी पहले। क्या कोई कीमती खजाना था? हाँ, वो कीमती खजानों से, अनमोल खजानों से भी अनमोल था, क्योंकि उसके बारे में कहा जाता है कि हिकमत के सारे खजाने उसी के अंदर पोशीदा थे, उसी में रहते थे, उसी में समाये हुए थे, सुकून कर रहे थे उसके अंदर। इसीलिए तो उन खजानों को ना कोई चुरा सकता था, ना कोई छुपा सकता था, बल्कि वो खजाने मेरे और आपके लिए आज भी जारी हैं। वो ग्रेस मेरे और आपके लिए आज भी जारी है। लेकिन फर्क क्या है कि जब हम उसको रिसीव कर लेंगे, जब हम उसको कबूल कर लेंगे, तो तब वो हमारी जिंदगियों में एक्टिवेट हो जाएगी। और आज खुदावंद चाहता क्या है कि खौफसदा मत हो। आपकी जिंदगियों में जहां जहां पर खौफ काम कर रहा है, जहां जहां पर दहशत ने ढेरे डाल रखे हैं, जहां जहां पर गुर्बत की वजह से, बीमारियों की वजह से, कमियों की वजह से, कमजोरियों की वजह से आप खौफसदा हो चुके हैं, आज खौफसदा मत हो। क्योंकि वो फरमाता है तू खौफ ना खा, तू ना घबरा, मैं तेरे नाल नाल हूं।
खुदावन यहोवा खुदा हमेशा हमारे साथ साथ रहता है और उसका फेवर हमारे लिए हमेशा जारी रहता है। और फजल की वजह से तहाई पाएंगे, गिफ्ट्स आपकी जिंदगियों में काम करना शुरू करेंगे। जब मजूसी आए थे तो मजूसी खाली हाथ नहीं आए थे, मजूसी सोना, मोर और लुबान लेकर आए थे और डिफरेंट कंट्रीज के अंदर से आए थे उसके लिए। जब आपकी जिंदगियों में ग्रेस काम करेगा तो आपकी जिंदगियों में भी खुदावन के फजल से तहाइफ आना शुरू हो जाएंगे, गिफ्ट्स काम करना शुरू हो जाएंगे। जोशुआ सुलेमान वजाहत करते हैं कि निजात फजल का पहला तोहफा है, निजात फजल का पहला तोहफा है लेकिन वाहिद नहीं। और दीगर इसमें शामिल है ईमान, रहम, निजात, मसा, बाख्तियार बनाना। एपी सुलेमान कहते हैं बशर्ते कि कोई चीज खुदा की तरफ से आए वो फजल है। और इसका सीधा मतलब ये कि हम हर रोज फजल कसरत से ले रहे हैं, अबंडेंटली हम रिसीव कर रहे हैं। हमारे हम पर फजल कसरत से जारी है। उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, जागना, ये उसी की ग्रेस की वजह से कंटिन्यू जारी है और अबंडेंटली जारी है। और मैं समझती हूँ कि फजल बनीनो इंसान के लिए सबसे कीमती तोहफा है, सबसे बड़ा तोहफा जो है वो फजल ही है। और खुदा के फजल से आज फायदा उठाकर खुद को अजीम बनाना शुरू कीजिए, खुद को ग्रेट बनाना शुरू कीजिए। आप चाहते हैं कि आप अजीम बनते जाएं तो खुद को ग्रेट बनाने के लिए फिर फजल को अपनी जिंदगी में लेना शुरू कीजिए। और इसीलिए खुदावंद का कलाम फरमाता है कि मेरा फजल तेरे लिए, खुदावंद का फजल हमारे लिए काफी है। और जब हम ये बात कहेंगे तो यकीन जानिए हमारी बीमारियां, हमारी कमजोरियां, हमारी परेशानियां, हमारे दुख, हमारे झगड़े, चाहे कुछ भी हो, उनकी जान निकल जाती है सिर्फ इस एक वर्ष को अपनी जिंदगी में रिपीट करते रहने से। जहां जहां पर आपके अंदर कमी है आप कहिए कि तेरा फजल मेरे लिए काफी है, क्योंकि खुदावंद हमें आज सिखा रहे हैं कि उसका फजल हमारी जिंदगियों के लिए काफी है। और फजल के बाद तमाम जो बाकी गिफ्ट्स है वो आपकी जिंदगी में फिर जारी होना शुरू हो जाते हैं। बेहतरीन फजल ये है कि खुदा ने अपने बेटे यीशु को हमारी खातिर कुर्बान कर दिया, सलीब पर कुर्बान करके खून बहाकर हमारी निजात का बड़ा जो है तोहफा हमें अता फरमा दिया। फजल की दो अक़साम है बड़ी, आम फजल और खास फजल। इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। फजल हर एक पर मैंने कहा जारी है, लेकिन फजल की दो बड़ी काइंड्स हैं, आम फजल और खास फजल। आम फजल में सेहत, माली खुशहाली, औलाद, अच्छा घर, कारोबार, बैरूने मुल्क विजिट, अच्छी बीवी, शौहर, कामयाबी, तालीमी मैदान में सरफराजी, अच्छी नौकरी, अच्छी बरकतें, खाना पीना अच्छा, पहनना अच्छा, ये सब आम फजल है जो कि पूरी दुनिया भर की जारी है। चाहे वो जिस भी कौम से है, जिस भी कौम से, फिरके से, कबीले से ताल्लुक रखता है, ये आम फजल है जो सब पर जारी है, क्योंकि उसके सब हाथ की कारागरी है। वो अपनी मुट्ठी खोल रहा है, अच्छा अंदर की ख्वाहिश पूरी करता है। लेकिन जो खास फजल है वो निजात है, खुशी है, इत्मीनान है, सुकून है, सलामती है, उम्मीद है, ईमान है, अब्दी जिंदगी है, कलाम की समझ है, हिकमत है, परहेजगारी है, तहम्मुल है, बर्दाश्त है, माफ करना है, नेकी है, खैरात है और आपकी दुआया जिंदगी है। ये खास फजल है और ये खास फजल खास लोगों पर होता है, ये आम लोगों पर उसका खास फजल नहीं होता है। आज इस बात को चेक कीजिएगा कि आप किस कैटेगरी के अंदर हैं, आम फजल या खास फजल के नीचे हैं, आप किसके अंदर हैं। और यीशु पर भी चूंकि फजल था और उसके बारे में कहा जाता है कि वो दुनिया और इंसान और खुदा दोनों की मकबूलियत में। इसी के नेक्स्ट पेज पर दूसरा बाब देखिएगा, लूका की इंजील दूसरा बाब और उसकी 40वीं आयत। वो लड़का बढ़ता और कुव्वत पाता गया और हिकमत से मामूर होता गया और खुदा का फजल उस पर था, यीशु पर खुदावन का फजल था। और इसके लास्ट वर्स पर आ जाइए 52, और यीशु हिकमत और कद्दो-कामत में खुदा की और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता गया। हर बच्चा बढ़ता है, हर बच्चा जो है वो बढ़कर जवान भी होता है, लेकिन जिन पर फजल खुदावन का होता है वो कुछ खुदावन की अलग सा काम दिखा रहे होते हैं अपनी जिंदगियों में। और वही काम खुदावन यीशु दिखा रहा था कि उस पर खुदावन की ग्रेस ठहरी हुई है। और अमाल चौथा बाब मेरे साथ निकालिएगा, उसकी 32वीं आयत। अमाल चौथा बाब 32वीं आयत। और ईमानदारों की जमात एक दिल और एक जान थी और किसी ने भी अपने माल को अपना ना कहा, बल्कि उनकी सब चीजें मुश्तरक थी। और रसूल बड़ी कुदरत से खुदावन यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे। और उन सब पर बड़ा, जब आप बड़े बड़े खुदावन के साथ में
में काम करते हैं, बड़े बड़े हदिये लाते हैं, नजराने लाते हैं और अपने किसी चीज को भी अपना नहीं समझते। आप पर बड़ा फजल, क्या लिखा गया है, उन सब पर बड़ा फजल था। और ये बड़ा फजल जाहिर करता है कि हाँ, खुदावन की ग्रेस जबरदस्त किस्म की आप लोगों पर फिर ठहरी हुई है। और अमाल 11वां बाब उसकी 23वीं आयत, वो पहुंचकर और खुदा का फजल देखकर खुश हुआ। यानी जब आप पर फजल आ जाता है तो आपके अंदर खुशी आ जाती है, शादमानी आ जाती है, आपके अंदर हिकमत, दुआया जिंदगी, ईमान के रूहुल कुद्स के सारे फल एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। रूहुल कुद्स की नेमतें जो है वो आपके अंदर काम करना शुरू कर देती हैं। और सबसे बड़ी बात कि मत्ती की इंजील 2 बाब और 11वीं आयत, जब मजूसी, मैंने कहा कि मजूसी आए तोहफे लेकर, तो जब मजूसी तोहफे लेकर आए तो उनके अंदर सोना, मोर और लुबान। 11वीं आयत मेरे साथ लास्ट एक वर्ष जरूर पढ़िएगा, मत्ती की इंजील 2 बाब और 11वीं आयत। और उस घर में पहुंचकर बच्चे को और उसकी माँ मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सजदा किया। और उस घर में, कहाँ पहुंचकर, घर में पैदा कहाँ हो रहा है, कहाँ पैदा हो रहा है, चरनी में। पैदा कहाँ हुआ, चरनी में, सराय में, सराय में पैदा हुआ। लेकिन यहाँ पर लिखा और उस घर में पहुंचकर, मजूसी तकरीबन कहा जाता है कि यीशु मसीह तब साल या 1.5 साल के थे जब मजूसी खुदावंद यीशु मसीह से मिलने के, सोना, मुर और लुबान लेकर के। और क्या किया, वहां पर जाकर उसको पहुंचकर उसकी मां मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर, किसके आगे, यीशु मसीह के आगे गिरकर सिजदा किया। आज घरों पर हम सितारे लगाते हैं, लेकिन सितारा आपकी जिंदगियों में जहां जहां पर आपके घरानों के अंदर मौजूद होगा, वहां पर आपके सजदे खुदावंद को कबूल होंगे, वहां पर खुदावंद की ग्रेस आप पर ठहरना शुरू करेंगे। वहां सोना भी आएगा, मुर भी आएगा, लुबान भी आएगा, हर तरह की माली मुश्किलात खत्म होना शुरू हो जाएगी, माली खुशहाली जो है वो आना शुरू हो जाएगी और मुख्ताजी जाती रहेगी। अगर देखा जाए तो मरियम और यूसुफ मुख्ताज थे, माली तौर पर मुख्ताज थे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की वजह से उन पर ग्रेस जो ठहर गई, तो उस ग्रेस ने सोना, मुर और लुबान, सोना नहीं पता कि कितने मिकदार में, जो गिफ्ट्स लेकर आते हैं अमूमन प्लेस के अंदर वो छोटे छोटे डिब्बे होते हैं, लेकिन ये क्वांटिटी नहीं पता, जो इतनी दूर से एक बादशाह लेकर आ रहा होगा, एक बादशाहों के बादशाह के लिए, तो वो कितनी मिकदार में ला रहा होगा। ये ग्रेस के काम है और ग्रेस आपकी जिंदगियों में होना बड़ी जरूरी है। अगर आज आपके माली हालात खराब है, अगर आज आपकी जिंदगियों में परेशानी है, अगर आज आपकी जिंदगियों में दुख काम कर रही है, तकलीफें काम कर रही है, बीमारियां काम कर रही है, तो चेक कीजिए कि ग्रेस कहां पर मौजूद नहीं है, ग्रेस की कहां कहां पर जरूरत है, उसके फजल की आपको किस किस एरिया के अंदर जरूरत है, उसको अपने घर में दावत दीजिए। सितारा घरों के ऊपर के सितारे को घरों के अंदर आने दीजिए, उस रोशन सितारे को, उस आफ्ताबे सदाकत को जो जिसके नूर की किरणों से हर जगह रोशन हो जाती है। आइए आंखों को बंद कीजिएगा और हम उस खूबसूरत वक्त में एंट्रेंस ले चुके हैं कि जब लोग एक दूसरे के साथ खुशियां बांट रहे होते हैं। आज कहिए कि खुदावंद यीशु, बेशक हम उसी रात की सेलिब्रेशन कर रहे हैं जिस रात को इस जमीन पर एक मुजस्सम कलमे की सूरत में उतरा। मुकद्दसा मरियम ने उसको सबसे पहले रिसीव किया, फिर कंसीव करके प्रोड्यूस किया और प्रोड्यूस करके अपनी जिंदगी में गिफ्ट्स को रिसीव करना शुरू किया। आज आप अपनी जिंदगियों के अंदर उन गिफ्ट्स को लेना शुरू कीजिए। आज अपनी जिंदगियों के अंदर उन गिफ्ट्स को एक्टिवेट होने दीजिए। वो रूहानी है, जिस्मानी है, हर तरह से उनको एक्टिवेट होने दीजिए। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद कादिर मुतअल जलाली आसमानी बाप, हम यीशु मसीह के नाम में तेरी पाक बारगाहों में शुक्रगुजारी करते हैं इन अच्छी बातों के लिए, इन बाबरकत बातों के लिए जो खुदावंद तूने हमारी जिंदगी में रखी है। सारा जलाल, सारी इज्जत तेरे बेटे यीशु मसीह को देते हैं। यीशु